Right, India have been off to a brilliant start at the Birmingham Commonwealth Games with weightlifters opening the account for the country. Mirabai Chanu led the way with a gold medal to successfully defend her CWG title after Sanket Sagar and Guru Raja had won a medal each in their respective categories. India had other promising performances as well in other disciplines, but it were the weightlifters indeed who ruled the roost here. Let's have a quick look at how the day panned out. She came like a queen and conquered it all without breaking a sweat. Defending champion and Olympic silver medalist Mirabai Chanu has once again reinforced her supremacy in weightlifting. Mirabai Chanu won the first gold medal for India at the Birmingham Commonwealth Games. She was in a league of her own where gold was waiting for her while others were battling it out for the remaining two spots. हाँ, मैं बाकी कॉन्टिजेंट जो ओपोनेंट है, प्लेयर्स है, उनके साथ में इतना फाइट नहीं कर पाए. मतलब मैं खुद के ऊपर फाइट किया है. मैंने पूरा कोशिश पहले ही सबको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए इजी है, पर मैं खुद के ऊपर पूरा फाइट किया था कि मैं अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए. She took the gold with a combined lift of 201 kgs, which happens to be a games record. Weightlifting gave India 3 medals on the day, with Sanket Sagar opening the count for India. The 21-year-old won a silver in the 55 kg category. In the process, Sanket even broke his arm as he went for a gold in the second attempt of clean and jerk. Despite injuring his elbow, Sanket's hunger to win a gold pushed him to make another final attempt with that broken arm, which eventually was a failed attempt. मैं मेडल जो आज़ादी के लिए जिन वीरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी मतलब जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जान देश के लिए समर्पित की, तो ये मेडल मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा. मेडल. The son of a tea stall owner who would sell pan for a living, the journey has been nothing but an inspirational one. मैं संकेत के पापा हूँ. मेरे लड़के ने भारत को पहला मेडल दिया और सांगली को भी पहला मेडल दिया. उसको बहुत खुशी है. एक खुशी आज हमको मुंह से बात इतना हो गए, बात नहीं कर रहे, इसलिए इतना ज़्यादा हो गए. Another medal, this time a bronze, came from Guru Raj, who also secured his personal best to ensure his place on the podium. The silver medalist at the Gold Coast Commonwealth Games 4 years ago was pushed to 4th spot in the snatch round but made a remarkable recovery to secure the 3rd spot. मुझे लग रहा था मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगा तो आज कुछ मेडल आ सकता है, मेरा बेस्ट निकलना है स्टेज में, ऐसे करके मैंने सोचा था. आज मेरा अच्छे दिन है, मतलब मैंने 5 लिफ्ट पास किया था और ब्रॉन्ज के लिए बहुत ही फाइट था. 151 मारने से ब्रॉन्ज आना था. मुझे कोच ने मोटिवेट किया और मैंने मार के और ब्रॉन्ज मेडल जीत गया. बहुत ही खुश हूँ. Before midnight, India had to compete in 3 medal events in weightlifting and no one returned empty-handed. The weightlifting has given India a bright start, just like the Tokyo Olympics, where Mirabai Chanu opened the count with a silver medal. Hopefully the results at the Birmingham Commonwealth Games will be as glorious and historic as they were at the last Olympic Games. Sports Bureau, India Today. All right, now Mirabai Chanu has won the first gold medal for India at the Birmingham Commonwealth Games 2022. Defending champion and Olympic silver medalist Mirabai Chanu has once again reinforced her supremacy in weightlifting. We get you this first exclusive interview of Mirabai Chanu from Birmingham. Let's have a listen. So कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन हमें 3 मेडल मिल चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू. टोक्यो में भी इनका गोल्ड मेडल था, 2018 में भी गोल्ड मेडल था, 2014 में सिल्वर मेडल. लेकिन ये जो गोल्ड मेडल है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ी. हाँ, मैं बाकी कॉन्टिजेंट जो ओपोनेंट है, प्लेयर्स है, उनके साथ में इतना फाइट नहीं कर पाए. मतलब मैं खुद के ऊपर फाइट किया है. मैंने पूरा कोशिश पहले ही सबको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए इजी है, पर मैं खुद के ऊपर पूरा फाइट किया था कि मैं अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए. आपने शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर जो लड़ाई होगी, जो कंपटीशन होगा, वो आपका खुद से ही होगा. आपने स्नैच में 90 भी टच करने का कोशिश किया था, हो नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली. लेकिन आप कैसे देखते हो, आपने इधर क्लीन एंड जर्क में आके फिनोमिनल परफॉर्मेंस. हाँ, मैंने
ये कंपटीशन में मुझे ये पूरा टारगेट करके आया था कि मैं स्नेस में अच्छा से परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि मेरा स्नेस पहले से ही वीक है, तो मैं उसी को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमने कोशिश किया था कि टोक्यो से वापस आते हमने स्नेस में काम किया था कि ताकि हम अच्छे से कर पाए और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैंने पूरा कोशिश किया और मुझे ये परफॉर्मेंस में बहुत खुशी हूँ कि 88 मैंने किया है स्टेज में, 90 भी टच किया है पर नहीं हुआ, पर फिर भी मैं ये परफॉर्मेंस में बहुत ही खुश हूँ। ओलंपिक्स में आपने टोटल जो स्कोर था 202 था, यहाँ पर 201 है। आपको लगता है कि कंपटीशन जो है आपका धीरे धीरे जो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है हर एक चीज़ में? हाँ, मैं ओलंपिक से वापस आके मेरा ट्रेनिंग जो है प्रॉपर मतलब इतना कर नहीं पाई थी कि मैंने सिर्फ टेक्निक में और कंडीशनिंग इस सब में किया था, तो इसलिए मेरा टोटल में कम किया है। फिर भी मेरा टारगेट है वर्ल्ड चैंपियनशिप में है ना, अभी दिसंबर में हो रहा है, इसका पूरा टारगेट रखी हूँ मैंने। जो 2 सवाल मेरा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, स्नैच में आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? आज आपने ट्राई तो किया था, लेकिन मन में कुछ है? हाँ, मेरा टारगेट है, मैं 90 क्रॉस करने के लिए टारगेट हूँ। हमारे कोच और दोनों ने मतलब पहले से ही हमने टारगेट रखा है, तो मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूरा हम करने के लिए तैयारी है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सब एकदम खुश हैं गोल्ड से। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि पूरा इंडिया का जो भारतवासी उन्होंने बहुत प्यार दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, तो मैं उनकी वजह से मेडल जीत पाई हूँ, गोल्ड मेडल। तो थैंक यू सो मच। इस इयररिंग का क्या राज है? ये सबको पता है, ये मम्मी ने मुझे दिया था गिफ्ट, तो मुझे लगता है कि हर कंपटीशन में मुझे ये मेरे पास रहो, तो इसलिए मैंने आज भी ये पहना है तो ये मेरे लिए लकी है। थैंक यू। All right, India is shining bright at the Commonwealth Games 2022. Weightlifter Bindyarani Devi has clinched a silver in the women's category, 55 kg category, and took India's tally to 4 now. The 20-year-old lifted a total of 202 kgs. She lifted 86 kgs in the snatch round and registered a Commonwealth Games record at 116 kgs in the clean and jerk round. Nigeria's Adijat Adenike Olarinoye, he is said to have obliterated the games record in snatch and total effort with an aggregate of about 203 kgs, which is 92 kgs plus 111 to win the gold medal. Earlier, Mirabai Chanu had provided India its first gold, while Saket Sargar and Guru Raja Pujari had clinched silver and bronze medals respectively. सो इस वक्त हमारे साथ हैं बिंदिया रानी, कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट 55 kg वेट कैटेगरी में। बिंदिया, आपका पहला कॉमनवेल्थ गेम्स और सिल्वर मेडल, कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपनी खुशी को? आज मेरा ये लाइफ का गेम से इसमें मेरा सिल्वर मेडल आया, इसके लिए मैं बहुत आई एम सो फील वेरी हैप्पी मेरा फर्स्ट लाइफ के लिए सिल्वर मेडल आया, इसके लिए मैं बहुत खुश आप मैं ये जानना चाह रहा था कि एक एथलीट बनने के पीछे आपने कितनी कड़ी मेहनत की, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, चाहे वो परिवार की बात रही हो, चाहे आप खुद आपने किस तरीके से ना अपने आप को आगे बढ़ाया वो? और ये मेरा कोचों ने भी बहुत हेल्प किया और टॉप्स और साई ने बहुत हेल्प किया। उसके बाद मेरा कोच विजय शर्मा प्रमोद सर, वो लोग ने अभी भी ट्रेनिंग में पूरा, मेरा टेक्निक थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए रूम हमने अभी इधर बताया, फिर रूम में जाके सौ की सोचना है, सालों ने ये बताया, ये ऐसे बोला, मैंने सालों का एडवाइस मैंने दिमाग से लगाया, इसके लिए वो सालों ने बहुत हेल्प किया। स्नैच में आप थोड़ा सा अभी आपको लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि आप क्लीन एंड जर्क में बेहतर कर रहे थे, लेकिन स्नैच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उस पर आप कैसे काम कर रहे हैं? मैं स्नैच भी अभी तो कभी कभी अच्छा किया, तो क्लीन जर्क तो कॉम्पिटिशन में ट्रेनिंग में इतना फेल नहीं है, स्नैच तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो अभी तो ठीक चल रहे, इधर बर्मिंघम में ट्रेनिंग आया, अभी ठीक चल रहे, फिर उसके बाद अभी भी स्नैच तो पहले से अभी ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है आपके पास और ये पहला आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, आपको लगता है कि ये अभी यहाँ से आपका जो प्रोफेशनल जो लाइफ है, जो करियर है, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, अलग एकदम बदलने वाला है? अभी थोड़ा
चेंज करने मतलब अभी खाना पीना में और ज़्यादा फोकस करेगा और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। मम्मी पापा या फैमिली जो है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि क्या है बैकग्राउंड, अगर आप किस तरीके से एथलीट बनने के पीछे क्या कहानी थी, कैसे आपने वेट लिफ्टिंग को चूज किया? ओके मेरा पहले 2008 से मैं ताइक्वांडो 8 to 12 ताइक्वांडो खेला। उसके बाद मैंने सालों ने बोला, मैंने ताइक्वांडो भी ब्लैक बेल्ट हो गया और इंटरनेशनल भी खेला, ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल लिया। मैंने सालों ने बोला आपका हाइट तो ताइक्वांडो में थोड़ा प्रॉब्लम है, अब दूसरा गेम में चलेगी तो बहुत अच्छा आएगा बोला। फिर मैंने हमारा मणिपुर का पढ़ाई में मेंग कुंजू का एक्शन फोटो है, इसका लाइफ हिस्ट्री, ऐसे मैंने पढ़ाई किया। फिर मैंने सोचा मुझे भी मेंग कुंजू में थोड़ा हाइट भी थोड़ा सता इसलिए मैंने सोचा मुझे भी वेट लिफ्टिंग चेंज करने। फिर मुझे भी मतलब मैं बच्चा के टाइम थोड़ा ताकत घर से, और इसके मैं खुद से चली गई। फिर मैंने मेरा रंजन सर 2012 में मैंने सर मुझे भी लिफ्टिंग चाहिए ऐसे बोला। सालों ने कोई बात नहीं आ जाओ बोला। मैंने खुद ने डायरेक्ट सर को बात किया, इसे करके मैंने लिफ्टिंग शुरू किया। उसके बाद मैं 2012 तो अभी तक साई में है, मणिपुर साई में। अभी तो नेशनल के में है, अब मेरा नाम तो एनसीओ में अभी तक है मणिपुर। अब तैयारी वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और पेरिस की है? या अभी नेशनल गेम्स, अभी सब कॉम्पिटिशन बहुत बाकी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स और बड़ा वाला गेम्स तो ओलंपिक है। इसमें मेरा पूरा फोकस है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। Now, Sanket Sagar was in excruciating pain when he made his final attempt to lift the 55 kg weight. He had broken his arm during the competition, but the silver medalist was not worried about the pain in his arm. In fact, it was his disappointment of not being able to win a gold here that was quite evident on his face. The young Maharashtra boy has come quite a long way from helping his father at a tea stall to stand on the podium there of the Commonwealth Games. Let's have a look at his journey. चोट लगी लेकिन मेडल जरूर हासिल हुआ। आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि बहुत अच्छा जा रहा था आपका, स्नैच बहुत अच्छा था, लास्ट में क्लीन एंड जर्क में 2 अटेम्प्ट रह गए। लास्ट में तो थोड़ा जर्क में प्रॉब्लम हो गया, इधर लोड आ गया, तो अभी थोड़ा नाराज तो हो, पर मेडल आ गया, थोड़ा खुशी है, बट बहुत सारा नाराज हूँ मैं। आप अपने आप से नाराज है क्योंकि आपको लग रहा था कि आप कंटेंशन में है गोल्ड मेडल के। अगर तैयारियों की बात की जाए, आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं वेट लिफ्टिंग 55 किलोग्राम में। एज एन एथलीट आप कितने संतुष्ट हैं, या फिर आपको लगता है कि आज जो मन मुताबिक था वो नहीं हो पाया? आज तो मेरा जैसे मन था वैसे तो हुआ नहीं है, क्योंकि इसके पहले तो ऐसे कुछ हुआ नहीं था। लोड आया, ऐसे पहली बार ही लोड आ गया और ऐसे क्रैक हो गया। तो स्नैच के बाद जब आप जर्क में आए थे तो पहला अटेम्प्ट आपका अच्छा गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? हमने देखा कि सेकंड अटेम्प्ट में जब आप वेट जो है लिफ्ट कर रहे थे, हल्का सा आपका हाथ नीचे की तरफ गया था, क्या हुआ था? लास्ट लिफ्ट, सेकेंड लिफ्ट में मेरा क्लीन जर्क में मैं पुश किया तो एकदम इस पे लोड आ गया, तो मेरा इसमें आवाज आ गया ऐसे कट जैसे, तो हाथ हिल नहीं रहा था मेरा। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली आपको असेस किया था, क्या बोला डॉक्टर ने? फ्रैक्चर है? हाँ, डॉक्टर बोले इधर से गैप बढ़ गया बोले, और अभी जाना है, अभी एक्सरे निकालना है, ट्रीट करना है अभी। पहला मेडल है, देश को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने देशवासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को? यस, मैं मेडल जो आज़ादी के लिए जिन वीरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने मतलब जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जान देश के लिए समर्पित की, तो ये मेडल मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा मेडल। संकेत, यहाँ से अब आपको ओलंपिक्स पे भी आपकी नज़र है, कितना बड़ा आपके लिए प्लेटफॉर्म रहेगा, किस तरीके से आप अपनी पूरी जर्नी प्लान आउट करेंगे? अभी तो इसके बाद पहले इंजरी का प्लानिंग होगा, कितना दिन लगेगा और कैसे रिकवरी करना है, फिर उसके बाद ही फिर बात का टारगेट सेट कर सकते। Now, Guru Raja Pujari had won a silver at the last Commonwealth Games in 2018, but this time in Birmingham, he had to switch to a higher weight category. That wouldn't have been for him, but the Air Force athlete rose to the occasion to secure a bronze medal with his personal best effort that he's put out. Nitin Srivastava spoke to Guru Raja after his bronze win. Let's have a listen. गुरुराज, कैसी रही आपकी जर्नी 2010 से लेकर 2022 तक?
बहुत ही सफ़र किया हूँ मैं 2010 से। तब मैंने स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग। मैंने 12th का बाद डिग्री ज्वाइन किया। तब मेरे को लगा वेट लिफ्टिंग मेरा कैरियर है, लाइफ बना सकते हैं इसमें। मुझे वहाँ पे अच्छी सी कोच मिला है राजेंद्र प्रसाद नाम से। वो मुझे वेट लिफ्टिंग सिखाया और उसी कॉलेज का दिन में मैंने स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया ऐसे खेल के 2014 में नेशनल पहुंच गया था, नेशनल मेडल लिया। उसके बाद 2015 में मुझे एयरफोर्स ज्वाइन किया हूँ मैं। एयरफोर्स में भी बहुत अच्छी सपोर्ट था लिफ्टिंग करने का। वहाँ पे टीम था, बहुत ही मतलब सपोर्टिव स्टाफ था वहाँ पे। जितेंद्र कोच था और वहाँ पे मेदवान सर था। ये लोग मुझे बहुत ही सपोर्टिव किया हूँ। और 2015 में मेरे को नेशनल कैंप में आया था मैं। उस टाइम मेरा 56 कैटेगरी में था मैं। 2016 मैंने इंटरनेशनल कैरियर स्टार्ट किया था। भाई, अगर बात की जाए आपके इस मेडल से, अब किस तरीके से आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो बदलेगा? कितना जो है एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए? ये मेरा सेकेंड मेडल है। फर्स्ट मैंने 2018 में सिल्वर जीत गया था उसमें गोल्ड कोस्ट में। और ये उसका बाद मैंने कैटेगरी 61 में आया, चेंज किया था। अब मुझे लगा था 61 में अच्छा परफॉर्मेंस करके मैंने दोबारा कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक कैटेगरी में ये अच्छा सा परफॉर्मेंस कर सकते करके मैंने मूव किया। वो कैटेगरी क्या हुआ था, 56 से कम हुआ, 55 आ गया। मैंने उसमें बॉडी वेट कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरे को। मैं अप में आया, अप आके 61 में 2019 से 61 स्टार्ट किया और अच्छा सा परफॉर्मेंस मैंने 61 में भी किया हूँ। अभी 2022 का आज के अगर इवेंट की बात की जाए, स्नैच आपका बहुत अच्छा था, जर्क में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। आपको लग रहा था कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं? एक वक्त पे आप नंबर 1 पे चल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद नीचे के से बाकी के जो 2 खिलाड़ी थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लग रहा था मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगा तो आज कुछ मेडल आ सकता है, मेरा बेस्ट निकलना है स्टेज में, ऐसे करके मैंने सोचा था। आज मेरा अच्छे दिन है, मतलब मैंने 5 लिफ्ट पास किया था और ब्रॉन्ज के लिए बहुत ही फाइट था। 151 मारने से ब्रॉन्ज आना था। मुझे कोच ने मोटिवेट किया और मैंने मार के और ब्रॉन्ज मेडल जीत गया। बहुत ही खुश हूँ। Now we know that wherever India is competing, there's no dearth of fans. Commonwealth Games in Birmingham turned out to be quite a similar place, where fans turning out in large numbers to cheer for our Indian athletes. Mirabai's success at the global stage has made her now a household name, expectedly so. She was the athlete every Indian fan was rooting for. Our correspondent, Nitin Srivastava, spoke to those Indian fans there on what they saw at the weightlifting ring. India! 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 Veera! Veera! So as you can see, this loud cheer for Mirabai Chanu. She won the gold medal here, and we have some Indian fans here who are supporting Mirabai Chanu throughout the tournament. Sir, do you think that she was competing from herself only? Sir, I think she was mind-blowing and she was competing for herself. There was nobody competing for her. The weight she was taking, and that was mind-blowing, and that was the heaviest weight. None of the other competitors had the maximum weights where she was competing with her the first attempt. And that was amazing, and we were all cheerful. We were all like, India, 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 Vande Mataram. Ma'am, it's her second gold medal to Commonwealth Games. Do you think now she is all set for the Paris Olympics? Yes, of course. This is just her practice. The way she was doing, it looked like, she was just practicing. Because out of 11 competitors, I don't think anybody compete to her points. So this was just her practice level. Mirabai! You rocked it! You nailed it! You killed it! Absolutely. Ma'am, your thoughts? I think Mirabai, she did absolutely
fantastic. She set a goal for herself and for us as well. Being an Indian, being a girl, and she was amazing. That's all we can say. I think this is a very good and positive symbol that India is also excelling in the athletics as well as the other countries and in future, and this is a very good opportunity for all the women who wants to take part in powerlifting and weightlifting and all this kind of sports and athletics. So Mirabai will set a mark for everyone, and she is really an inspiring character for everyone, and we are proud of Mirabai, and congratulations Mirabai for the gold. We are so happy. So from where you guys are? I mean, you I belong to Birmingham itself, and I came from 1 hour far from this place. But definitely I have other few events more in the coming days, like day after tomorrow there we have India and England hockey match, and then we have a boxing matches on 5th and 6th, then we have a javelin throw match on the 7th, but unfortunately we won't be able to see Neeraj Chopra.